Hey, hello guys, good evening to everyone. Welcome to IQ Civil Science Academy, a great coach transforms life. Today's topic is CITES, that is Convention on International Trade in Endangered Species. It is a very important organization for environment and ecology studies. UPSC asks many questions on CITES and it is in news, it is in current affairs. Recently, Government of India or Lok Sabha passed one bill that plans to approve the CITES in India. So today's topic, CITES, very important organization by me, Dr. Sachin Kadam, faculty at IQ Civil Science Academy. This is about IQ Civil Science Academy. You can see we coached or we gave training to the 60 meritorious students in Assam Administrative Staff College. We gave training to the students from T and XT Garden Tribes from Assam Administrative Training Institute. So we have run many government projects under Assam Administrative Staff College for the students from Assam. So we are a government affiliated institute. That's what you need to remember. Okay, that shows how quality education is available for civil services examination with IQ Civil Science Academy. This is our Google review 4.9 star. That is just awesome. बहुत कम academies को इतनी ज़्यादा stars मिलते हैं, तो you can be rest assured about the quality teaching at IQ Civils IS Academy Guwahati. This is our elite panel of faculties from Delhi, जिसमें सुनील झा सर से लेकर तो नितिन कुमार सर and Sachin Kadam sir is also there. For offline and online batches which are starting from 10th August, 16th August and 22nd August, you can directly get in touch with our director Mr. Anuj Singh sir. You can get in touch with our admissions manager Vishal Sharma and our front office holder Anuradha Saikia. Their numbers are given here. So as soon as possible visit our center in Guwahati, and if you are planning to join our online batches, get in touch with these numbers and register yourself. This is our YouTube channel जिस पे अभी आप ये वीडियो देख रहे हो. तो आपको इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है और आपको रेगुलरली हमारे वीडियोस देखने हैं. लेट्स गो अहेड. सो दिस इज द न्यूज. What news says? The news says that Lok Sabha passes bill to implement global norms on endangered species. अभी अभी हमने बात की थी कि साइट्स नाम की जो ऑर्गेनाइजेशन है, दिस साइट ऑर्गेनाइजेशन इज रिलेटेड टू एंडेंजर्ड स्पीसीज ओनली, and we passed a bill, Lok Sabha passed a bill to implement these global norms on endangered species. So Lok Sabha on Tuesday passed by voice vote the Wildlife Protection Amendment Bill 2021. तो अब ये WPA एक्ट भी आपको याद रखना पड़ेगा. The original WPA Act of India is of 1972. See, there are few important acts related to environment and ecology and biodiversity. First and foremost is Wildlife Protection Act 1972. Then second is Environment Protection Act EPA 1986. Then third is Biodiversity Act 2002. These are most important acts. There are many, but these three acts are very important and very crucial for civil services examination. So Lok Sabha on Tuesday passed by voice vote the Wildlife Protection Amendment Bill 2021 that seeks to provide for implementation of the CITES. साइट को implement करने के लिए ये अमेंडमेंट बिल जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को हमने अमेंड किया है, ये अमेंडमेंट बिल पास किया गया है. नाउ व्हाट एग्जैक्टली दिस बिल इज अबाउट? This bill seeks to amend the Wildlife Protection Act 1972. Replying to the debate on the bill, Environment Minister Bhupinder Yadav said, "Fine, let it be." अब exactly ये bill क्या करना चाहता है? तो this bill wants to establish management committees. See, ये बिल हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं या हमने ये बिल पास किया है ताकि हम साइट्स के अलग अलग नॉर्म्स, रूल्स और रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट कर सके. तो साइट क्या कहता है, उनके रूल या रेगुलेशन इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या होना चाहिए? तो साइट कहता है इट इज नेसेसरी फॉर प्रॉपर एक्सपोर्ट एज पर द साइट एग्रीमेंट टू हैव अ मैनेजमेंट कमिटी. सो इन इंडिया there will be one management committee
that will be established under Wildlife Protection Act 1972. And why we are establishing this management committee? So that we can export wildlife and wildlife products according to the norms given by CITES, according to the norms of CITES agreement. Is that clear? This is the amendment that Lok Sabha recently passed to the Wildlife Protection Act 1972. When we export a product from our country, we will certify that no poaching of endangered species has been undertaken for that. For example, suppose we are exporting tiger skin. अब आप बोलोगे सर टाइगर स्किन तो एक्सपोर्ट करना अलाउड नहीं है. जस्ट इमेजिन करो कि किसी टाइगर की नेचुरल डेथ हो गई और उसकी नेचुरल डेथ होने की वजह से उसकी स्किन हमें अवेलेबल हो गई. नाउ इंस्टेड ऑफ बर्निंग दिस स्किन, इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग अवे दिस स्किन after the natural death of the tiger, we can use this skin for economic benefit, right? लेकिन अगर हम विदाउट एनी रूल्स, विदाउट एनी रेगुलेशन इस तरह से टाइगर स्किन का एक्सपोर्ट अलाउ करेंगे तो उससे टाइगर की पोचिंग बढ़ेगी ना. तो वो ना हो इसलिए हमने क्या किया, वी एस्टेब्लिश्ड वन मैनेजमेंट कमिटी अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972. एंड ये मैनेजमेंट कमेटी का ओरिजिनल प्रोविजन किसका है? दिस मैनेजमेंट कमिटीज ओरिजिनल प्रोविजन इज अंडर साइट्स. साइट्स के अंडर ये प्रोविजन है. तो नाउ दिस मैनेजमेंट कमिटी विल सर्टिफाई दैट ये जो टाइगर स्किन हम आपको मिल रही है या एक्सपोर्ट की जा रही है, दैट टाइगर स्किन इज नॉट, it is not like produced or is not the product of poaching, but instead it is extracted from the body of a tiger who got killed naturally. So this is the certification. तो यहाँ पे एक important point आपको याद रखना है, when it comes to sites do not bans export or import of wildlife as well as wildlife product. Instead, CITES regulates the export and import of wildlife and wildlife product so that there is no danger to the wildlife or there is no extinction of the wildlife. So CITES is about regulation of wildlife and wildlife product. It is not about banning the export and import of wildlife and wildlife product. So once you establish a management committee under Wildlife Protection Act 1972 according to the norms under CITES, when we export a product from our country, we will certify that no poaching of endangered species has been undertaken for that atom. Clear? Let's go ahead. अब हमें साइट्स के बारे में पता होना चाहिए ना. तो अब तक एक्चुअल करंट अफेयर क्या था? करंट अफेयर ये था कि साइट्स के रूल्स और रेगुलेशन इंप्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लोकसभा में एक बिल पास किया है. वो बिल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को अमेंड करता है और अमेंड करके ये कहता है कि नाउ इन इंडिया देयर विल बी अ मैनेजमेंट कमिटी. व्हाट विल बी द रोल ऑफ दिस मैनेजमेंट कमिटी? दिस मैनेजमेंट कमिटी विल सर्टिफाई द wildlife and wildlife products that we are exporting. And what that certificate will say? That certificate will say that this wildlife and wildlife product are not produced by poaching, instead it is legally acquired. That is what is the role of management committee. But because of this news में क्या आ गया, करंट अफेयर में क्या आ गया, साइट्स आ गया. अब हमारा करंट अफेयर या यूपीएससी के लिए जब हम करंट अफेयर प्रिपेयर करते हैं तो हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए? व्हाट एग्जैक्टली इज इन करंट अफेयर एंड व्हाट एवर टॉपिक और व्हाट एवर इंस्टीट्यूट इज मेंशन्ड इन दैट करंट अफेयर, तो आपको क्या करना है, उसका स्टैटिक पोर्शन भी अच्छे से करना है. नाउ स्टैटिक में अब हमें इस करंट अफेयर को लिंक करके क्या पढ़ना पड़ेगा? साइट्स. सो व्हाट इज साइट्स? सो साइट इज द C for convention, on, I for international, T for trade, in, E for endangered and S for species. So the convention on international trade in endangered species of wild fauna and flora. यहाँ पे एक important point याद रखो आप, fauna refers to animals and flora refers to plant.
तो साइट इज अ कन्वेंशन that controls or regulates the international trade of endangered species of animals as well as plant. It is very important, very crucial. ये plant और animal दोनों को regulate करता है. CITES is an international agreement between governments with the objective of the preservation of the planet's plants and animals by ensuring that the international trade in their specimens does not threaten their survival. तो यहाँ पे ये कह रहे हैं क्या that the international trade of these plants or animals will be banned? No, they are saying CITES ensures that international trade in plants and animals does not threaten their survival. So if the survival of animal and plant is not threatened, international trade of that plant and animal is allowed even under CITES. Okay, so it was adopted in 1963 and it entered into force in 1975. Now before I go ahead, इस slide से आपको क्या याद रखना है? Number one, CITES is international agreement. Number two, CITES regulates and controls the trade of endangered species. Number three, CITES regulates and controls the trade of endangered species of plants as well as animals. And number four, CITES was adopted in 1963 but it came into force in 1975. And last but not least, number five, what is CITES? It is the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. That's it. Let's go ahead. Now what is CITES? CITES was conceptualized in 1963. We know that at a meeting of IUCN. Fine, ये नई fact हुई कि कौन सी organization ये concept लेकर आई. So this concept was put forward by IUCN, International Union for Conservation of Nature. It came into force in 1975. You know that. कितने member हैं? Not important. Okay. Now it came into force in 1975 and consists of 183 member countries till date that abide by CITES regulations by implementing legislation within their own borders to enforce those regulations. तो देखो मैं आपको एक example देता हूँ. There was one regulation of CITES that there must be management committees in every country so that we can certify the wildlife and wildlife product that they are not the product of poaching. इंडिया में वो मैनेजमेंट कमेटी नहीं थी. तो टू enforce that regulation of CITES, India came up with an amendment bill, that is law, Wildlife Protection Act Amendment Bill 2021, जिससे वो मैनेजमेंट कमेटी इस्टेब्लिश हुई. तो साइट्स के जो मेंबर्स होते हैं ना, वो साइट के रेगुलेशन को कैसे अवॉइड करते हैं? बाय इम्प्लीमेंटिंग लेजिस्लेशन विद इन देयर ओन बॉर्डर्स टू एनफोर्स दोज रेगुलेशंस. दैट्स इट. यही तो हमने अभी अभी न्यूज में किया ना. यस और नो? यस. इट इज लोकेटेड इन जिनेवा, स्विट्जरलैंड. CITES is administered by UN under its UNEP, United Nations Environment Program Wing. अब इस स्लाइड से आपको क्या याद रखना है? पहली बात याद रखनी है, CITES was conceptualized by IUCN, but nowadays CITES is administered by UNEP. And third, CITES is located in Geneva. ये तो पता ही है आपको कि CITES was adopted in 1963 and it came into force in 1975. चले आगे. Cool. So the convention of parties. अब देखो ये जो CITES है ना, ये है एग्रीमेंट. अब इसके टोटल मेंबर है 183. तो इन मेंबर्स को अगर कोई डिसीजन लेना है, कुछ नया रूल लेकर आना है, रेगुलेशन लेकर आना है, तो इन मेंबर्स को मिलना पड़ेगा ना. तो ये वंस इन अ ईयर और ट्वाइस इन वंस इन 2 ईयर और वंस इन 3 ईयर मिलते हैं. तो जब ये सब मिलते हैं तो उनको कहा जाता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी. क्या कहते हैं? कॉप. कन्वेंशन ऑफ पार्टीज या कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज भी कहते हैं. तो ये हर साल भी हो सकती है, 2 साल में एक बार हो सकती है, डिपेंड करता है. तो व्हाट इज कॉप? अब इस कॉप में कौन आएगा? ओनली दोज कंट्रीज विच आर मेंबर्स ऑफ साइट्स एंड नॉट अदर कंट्रीज. ठीक है. सो कॉप
two sides is the supreme decision making body of the convention and it comprises all parties. तो जो लास्ट कॉप हुई थी ना, 18th कॉप थी, और वो कहाँ हुई? जिनीवा में हुई। कब हुई? 2019 में। फिर 2020 में कोविड आया, 21 में भी कोविड आया, इसलिए अभी जो 18th के बाद जो 19th कॉप होने वाली है वो होने वाली है पनामा सिटी में, और वो होगी 22 में, मतलब अभी नवंबर में। अभी क्या चल रहा है? अगस्त चल रहा है ना, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, और 3 मंथ में ये होगी। और उस टाइम जब करंट अफेयर में साइट्स आएगा ना, तो आपको साइट्स के बारे में सब कुछ पता होगा। आपको ये भी पता होगा साइट की एक रेगुलेशन इंप्लीमेंट करने के लिए हमारी लोकसभा ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को अमेंड किया है, और अमेंड करके क्या किया? तो अमेंडमेंट के थ्रू उन्होंने इस्टेब्लिश की है मैनेजमेंट कमेटी जो सर्टिफाई करेगी वाइल्ड लाइफ को या वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते वक्त, है ना। तो इस स्लाइड से आपको क्या याद रखना है? पहला पॉइंट कि लास्ट कॉप जिनीवा स्विट्जरलैंड 2019 में हुई थी। नेक्स्ट कॉप पनामा सिटी पनामा 22 में होगी। और इंडिया में कभी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुई कि नहीं? ये सारे मेंबर एक दूसरे को इंडिया में कभी मिले कि नहीं? तो आंसर इज यस, इन 1981। सो साइट्स वाज अडॉप्टेड इन 1963, site came into force in 1971, and conference of party meeting, that is third conference of party, sorry it is 75, the third conference of party was took place in India. लास्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कौन सी थी? 18 थी, और ये कहाँ हुई? जिनीवा में। कब हुई? 19 में। और नेक्स्ट कौन सी होगी? 19th होगी। कहाँ होगी? पनामा सिटी में। और कब होगी? 22 में, नवंबर। हो गया, खेल खत्म इस स्लाइड का। चलो आगे। सो ऑल दो साइट्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले बात तो साइट्स कंट्रोल्स एंड रेगुलेट्स द इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ प्लांट्स as well as animal. दूसरा पॉइंट, साइट्स इज इंटरनेशनल एग्रीमेंट। तीसरा पॉइंट, साइट्स इज लीगली बाइंडिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वंस यू बिकम मेंबर ऑफ साइट्स, you have to implement all the rules or regulations of sites, and if you don't do that, sites can take legal action against you. Although sites is legally binding on the parties, it does not take place of national laws. मतलब देखो नॉर्मली क्या होता है ना, इफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइंस एनी एग्रीमेंट विथ एनी अदर कंट्री, तो उस एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें पार्लियामेंट में लॉ पास करना पड़ता है। ओके, जब हम किसी भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट को साइन करते हैं तो हम कहते हैं कि इंडिया हैज साइंड दैट एग्रीमेंट, एंड टू इम्प्लीमेंट दैट एग्रीमेंट इफ वी पास एनी पार्लियामेंट्री लॉ, तो हम कहते हैं इंडिया ने उस एग्रीमेंट को रेटिफाई किया। तो साइट्स को रेटिफाई करने की जरूरत नहीं है, मींस देयर इज नो नीड टू पास पार्लियामेंट्री लॉज टू इम्प्लीमेंट होल साइट। इंस्टेड you can simply implement the different rules and regulations of sites through your own national laws. अब हमारा खुद का नेशनल लॉ है ना, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, है ना। इसी में हमने अमेंडमेंट किया। किस लिए किया? ताकि वी कैन इम्प्लीमेंट वन ऑफ द रेगुलेशन ऑफ साइट। साइट को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने ये अमेंडमेंट किया क्या? नहीं, हमने ये अमेंडमेंट किया ताकि साइट की एक सिंगल प्रोविजन या एक सिंगल रेगुलेशन, दैट इज to establish management committee, वो implement करने के लिए किया। So although sites is a legally binding on the parties, it does not take place of national laws. Rather, it provides a framework to be respected by each party, which has to adopt its own domestic legislation to ensure that sites is implemented at the national law. That's what I told you. Let's go ahead. Now, how sites ensures that a particular plant or animal species which is endangered does not threaten the existence of that plant and animal species through international trade. तो इंटरनेशनल ट्रेड से एनिमल और प्लांट का एक्सटिंक्शन ना हो, ये साइट कैसे इंश्योर करती है? सो साइट क्लासिफाइज प्लांट्स एंड एनिमल्स इनटू 3 कैटेगरीज। इसलिए साइट के ना 3 अपेंडिक्स है। कितने अपेंडिक्स है साइट्स के? देयर आर 3 अपेंडाइसेस और अपेंडिक्स ऑफ साइट्स।
बेस्ड ऑन हाउ थ्रिएटन दे आर। जितना ज़्यादा थ्रिएटन वो अलग अपेंडिक्स में आएगा, और थ्रिएटन अगर कम होगा तो अलग अपेंडिक्स में। सो साइट्स क्लासिफाइज प्लांट्स एंड एनिमल्स इनटू 3 कैटेगरीज बेस्ड ऑन हाउ थ्रिएटन दे आर। और वो 3 अपेंडिक्स क्या है देख लो। अपेंडिक्स 1, species that are in danger of extinction. For example, Asiatic lion, it is under the threat of extinction, या tiger under threat of extinction। तो पूरे दुनिया में ऐसे प्लांट या ऐसे एनिमल्स, देखो ये प्लांट है लेडी स्लीपर्स ऑर्किड, ऐसे प्लांट या ऐसे एनिमल which are facing the threat of extinction, we keep sites keeps them in appendix 1, and when we put any plant or animal species in appendix 1, तो साइट्स के अंडर उस प्लांट और एनिमल स्पीसीज को हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन मिलता है। देखो कमर्शियल ट्रेड इज प्रोहिबिटेड, मतलब अब देखो मैंने टाइगर स्किन का आपको एग्जांपल दिया था, लेकिन आप टाइगर या एशियाटिक लॉयन या सी टर्टल या गोरिल्ला या लेडी स्लीपर ऑर्किड इनके किसी भी पार्ट का कमर्शियल सेल नहीं कर सकते। कमर्शियल ट्रेड इज कंप्लीटली प्रोहिबिटेड। इट परमिट्स आर रिक्वायर्ड फॉर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। अगर आपको किसी भी प्लांट या एनिमल स्पीसीज को जो अपेंडिक्स 1 में है साइट्स के, उसका इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट करना है तो यू नीड टू टेक परमिट। ओके, ट्रेड परमिटेड जस्ट फॉर रिसर्च ओनली if the origin country ensures the trade won't harm the species chance of survival। और ये import या export of these species in appendix 1 कब allow होता है? अगर जैसे इंडिया में है एशियाटिक लॉयन, ठीक है, पूरे एशिया में कहीं एशियाटिक लॉयन नहीं है, और अगर सपोज अमेरिका ने कहा कि वी वांट टू स्टडी द डिफरेंस बिटवीन अफ्रीकन लॉयन एंड एशियाटिक लॉयन, इसलिए अमेरिका ने इंडिया को रिक्वेस्ट की कि हमें कुछ एशियाटिक लॉयंस दे दो, किस लिए? रिसर्च पर्पस के लिए। तो इंडिया क्या करेगा? साइट से परमिट लेगा, और अमेरिका भी साइट से परमिट लेगा, और ये दोनों परमिट देकर फिर इंडिया से एशियाटिक लॉयन अमेरिका में जाएंगे। लेकिन अगर अमेरिका इंडिया को ये कहता है कि हमें एशियाटिक लॉयन जू में रखने हैं, we want to keep Asiatic lions in zoos so that American people can see how exactly Asiatic lion looks. So that type of trade of Asiatic lion is not allowed because Asiatic lion is in appendix 1 of CITES. So any plant or animal species that falls under appendix 1 of CITES, their trade is allowed but only for research purpose, not for commercial purpose। And while doing that trade, that is import and export, these countries need to have permits। Done? चलो आगे। अब हम आते हैं अपेंडिक्स 2 में। Now which species are included in appendix 2? Species that aren't facing imminent extinction but need monitoring so that any trade does not become a threat। तो अपेंडिक्स 1 में जो प्लांट और एनिमल स्पीसीज है उनको तो हमें प्रॉपर वे से प्रोटेक्ट करना है, लेकिन अपेंडिक्स 2 में जो प्लांट और एनिमल स्पीसीज है, वी नीड टू जस्ट मॉनिटर देम, वी नीड टू जस्ट मॉनिटर देयर ट्रेड। ट्रेड परमिट्स ऑब्टेन्ड लीगली and only if the origin country ensures that its harvesting and trade won't harm the species chance of survival। Now here if you observe, commercial trade of plant and animal species that are included in appendix 2 is allowed, but ensuring that that trade will not lead to extinction of that plant or animal species। तो level of protection कम हो गई कि नहीं? अपेंडिक्स 1 में नो कमर्शियल ट्रेड, ट्रेड ओनली फॉर रिसर्च पर्पस। अपेंडिक्स 2 में कंप्लीटली ट्रेड को अलाउ किया जाता है, बट ये इंश्योर करके कि दैट ट्रेड विल नॉट लीड टू द एक्सटिंक्शन ऑफ दैट स्पीसीज, एज वेल एज उस ट्रेड को मॉनिटर किया जाता है। जैसे कि अमेरिकन एलिगेटर्स, पैडल फिश, मोहगनी, कोरल्स, these are some species which are included in appendix 2। is that clear to everyone? the अपेंडिक्स 1 एंड अपेंडिक्स 2 ये दो क्लियर हो गए साइट्स के। अब हम आते हैं अपेंडिक्स 3 पे, स्पीसीज दैट आर प्रोटेक्टेड इन एटलीस्ट वन कंट्री। अब देखो स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल दैट आर इंक्लूडेड इन अपेंडिक्स 1 एंड अपेंडिक्स 2, दे आर प्रोटेक्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड।
They are protected all over the world. But the plant or animal species that are included in Appendix 3, they are not protected all over the world, but they are protected in at least one country or two countries, not all over the world. Then, regulations for these species vary, but typically the country that requested the listing can issue export permits, and export from other countries requires a certificate of origin. मैं आपको इसका पैरा एग्जांपल देता हूँ कि सपोज एक स्पीसीज है X. This species is present in India as well as Bangladesh. Okay. Now India wants to protect this species. तो इंडिया गया साइट्स के पास और इंडिया ने साइट्स को रिक्वेस्ट की कि प्लीज इंक्लूड स्पीसीज एक्स इनटू योर अपेंडिक्स. अब साइट क्या करेगा, क्योंकि एक सिंगल कंट्री ने उसे प्रोटेक्ट करने के लिए रिक्वेस्ट की है, तो स्पीसीज एक्स विल बी इंक्लूडेड इन अपेंडिक्स 3 और इस स्पीसीज एक्स को प्रोटेक्शन सिर्फ इंडिया में मिलेगा, बाकी दुनिया में नहीं मिलेगा. अब इंडिया से अगर इसका एक्सपोर्ट करना है तभी आपको सर्टिफिकेट या परमिट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सिर्फ इंडिया उसको प्रोटेक्ट करना चाहता है. बाकी कंट्री से आपको एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करने के लिए सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं. हाँ, आपको बस ये बताना पड़ता है कि वो स्पीसीज ओरिजिन कहाँ से हुई है. मतलब अगर वो स्पीसीज आपने इंडिया से इंपोर्ट की है एंड इफ यू डू नॉट हैव सर्टिफिकेट, तो साइट्स विल टेक एक्शन. एंड अगर वो स्पीसीज आपने बांग्लादेश से इंपोर्ट की है एंड इफ यू डू नॉट हैव सर्टिफिकेट, तो नो एक्शन विल बी टेकन. देन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं सिंपल करके बताता हूं. इफ एनी प्लांट और एनिमल स्पीसीज इज इंक्लूडेड इन अपेंडिक्स 1 एंड अपेंडिक्स 2 ऑफ साइट्स, that plant or animal species is protected all over the world. And if any plant or animal species is included in appendix 3, that plant or animal species is protected in a particular country only. अब who is that particular country? तो अगर किसी कंट्री को अपने किसी प्लांट या एनिमल स्पीसीज को प्रोटेक्ट करना है, तो वो जब रिक्वेस्ट करती है तो वो सारी प्लांट और एनिमल स्पीसीज कहाँ आती है, अपेंडिक्स 3 में आती है. तो अपेंडिक्स 3 कंटेन्स द प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज which belong to a particular country, and that country has requested to protect that plant or animal species. So that plant or animal species is protected only in that country and not in any other country. But plant or animal species in appendix 1 and appendix 2 are protected all over the world. Clear? तो आप ये कह सकते हो कि प्रोटेक्शन एट अपेंडिक्स 1 एंड अपेंडिक्स 2 इज इंटरनेशनल एंड प्रोटेक्शन इन अपेंडिक्स 3 इज लोकलाइज्ड. ओके, चलिए आगे. अब आगे जाने से पहले मैं आपको फिर से एक पॉइंट बता देता हूं ताकि हमारा पीछे जो हमने पढ़ा है ना वो हम भूल ना जाए. तो न्यूज क्या थी कि लोकसभा पासेस बिल टू इंप्लीमेंट ग्लोबल नॉर्म्स ऑन एंडेंजर्ड स्पीसीज. तो बिल क्या था, तो दिस बिल अमेंडेड द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972. और अमेंडमेंट करके उन्होंने क्या किया, दे एस्टेब्लिश्ड मैनेजमेंट कमिटीज. ये मैनेजमेंट कमिटी क्यों एस्टेब्लिश की, क्योंकि द प्रोविजन फॉर मैनेजमेंट कमिटी इज इंक्लूडेड इन द साइट्स. और इस साइट्स की इस रेगुलेशन को इंप्लीमेंट करने के लिए वी अमेंडेड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972. ठीक है. अब ये मैनेजमेंट कमेटी क्या करती है, तो दीज मैनेजमेंट कमिटीज इशू सर्टिफिकेट्स फॉर प्रॉपर एक्सपोर्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट्स. अब इस न्यूज की वजह से न्यूज में क्या आ गया, साइट्स आ गया. तो व्हाट इज साइट्स? साइट इज एन इंटरनेशनल लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट that was adopted in 1973 but came into force in 1975, that controls and regulates the trade of animal and plant species which are endangered. The concept of site was of IUCN, but nowadays CITES is administered by UNEP, that is United Nations Environment Program. All the members of CITES, they meet with each other every year or once in a 2 year or 3 year. So the last meeting took place in Geneva, Switzerland 2019, and that was the conference of party 18th. Next meeting will take place in Panama City
2022 नवंबर में, एंड दैट विल बी द 19th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। तो ऐसी मीटिंग कभी इंडिया में हुई है क्या साइट्स की? तो आंसर इज यस। इंडिया में 1981 में थर्ड मीटिंग हुई थी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की। ठीक है। उसके बाद साइट्स कैसे इंश्योर करती है कि प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज का जो एंडेंजर्ड प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज है उनका ट्रेड रेगुलेट या कंट्रोल करे? तो साइट के पास 3 अपेंडिक्स है। अपेंडिक्स 1 हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन, and plant and animal species in appendix 1 can be exported or imported for research purpose only. Plant and animal species in appendix 2 are also protected and their trade is allowed, but their trade is monitored. And plant and animal species in appendix 3 are included when a particular country requests to include that particular plant or animal species. So Appendix 3 provides localized protection and Appendix 1 and 2 provides international protection. अब देखो, क्योंकि Appendix 1 और Appendix 2 में सारे मेंबर कंट्रीज को पूछ कर ही प्लांट और एनिमल स्पीसीज इंक्लूड करते हैं, तो स्पीसीज मे बी एडेड टू और रिमूव फ्रॉम Appendix 1 and 2 और मूव बिटवीन देम ओनली बाय कॉप। मतलब देखो, अगर एक स्पीसीज है उसे हमें Appendix 1 से 2 में लेकर आना है, या फिर हमें अपेंडिक्स 1 से वो स्पीसीज रिमूव करनी है, या अपेंडिक्स 2 से स्पीसीज रिमूव करनी है, या अपेंडिक्स 1 में स्पीसीज ऐड करनी है, या अपेंडिक्स 2 में स्पीसीज ऐड करनी है, तो ये सारे डिसीजन लेने के लिए आपको कौन लेता है वो डिसीजन? कॉप लेता है। लेकिन अगर आपको कोई भी स्पीसीज अपेंडिक्स 3 में ऐड करनी है, रिमूव करनी है, तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी डिसीजन नहीं लेती। वो डिसीजन को कोई भी मतलब कभी भी वो कंट्री डिसीजन ले सकता है। क्यों? क्योंकि अपेंडिक्स 3 में प्लांट और एनिमल स्पीसीज ऐड की ही क्यों हमने? क्योंकि एक पर्टिकुलर कंट्री ने रिक्वेस्ट की थी। तो अब वो पर्टिकुलर कंट्री अकेली अगर रिक्वेस्ट करेगी कि इसे निकाल दो, तो वो अकेले कंट्री से निकाल देंगे, तो वहां पे कॉप के परमिशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो आगे। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज: प्लांट कमिटी, एनिमल कमिटी एंड स्टैंडिंग कमिटी। साइट सेक्रेटेरिएट एंड यूएनईपी इसे क्या करता है? एडमिनिस्टर करता है। सो कॉप के बारे में मैंने आपको बता दिया था। अब देखो, इंडिया इज अ साइट्स पार्टी सिंस 1976। तो देखो, साइट्स वाज अडॉप्टेड इन 1963, it came into force in 1975. India became party to CITES in 1976 and third COP took place in India in 1981. अब इंडिया का इसका मेंबर होना क्यों सिग्निफिकेंट है? क्योंकि इंडिया हैज एक्सट्रीम डाइवर्सिटी। India is recognized all over the world for harboring up to 7 to 8% of all the species recorded by CITES. तो CITES के अपेंडिक्स 1, 2 में जितनी भी स्पीसीज है उसमें से 7 to 8% स्पीसीज कहाँ है? इंडिया में है। तो इंडिया का साइट्स का मेंबर होना बहुत जरूरी था, इंपॉर्टेंट था। Out of 36 global biodiversity hotspot, now see, if you want to learn in detail what is biodiversity hotspot and everything, so there is one video on biodiversity hotspot of mine on IQ Civils YouTube channel. So go to the IQ Civils YouTube channel, search biodiversity hotspot by Sachin Kadam and you will get that video जिसमें मैंने in depth properly biodiversity hotspot आपको बता दिए हैं। तो पूरी दुनिया में टोटल 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। आउट ऑफ देम 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट आर लोकेटेड इन इंडिया। नंबर 1 वेस्टर्न घाट, नंबर 2 सुंदालैंड, नंबर 3 Himalayas and number 4 Indo-Burma. These are the 4 biodiversity hotspots that are located in India and total कितने? 36. As an active CITES party, India prohibits the international trade of endangered wild species. India has placed several measures to control the threats from invasive alien species. This is done by regulating the trade by export certificates and import permit. Fine. अब एक बात याद रखो, अगर कोई स्पीसीज प्लांट या एनिमल की इन्वेसिव है, इन्वेसिव का मतलब क्या होता है कि वो अगर एक किसी इकोसिस्टम में आ जाए ना, तो वो बाकी किसी स्पीसीज को ग्रो ही नहीं होने देती। तो ऐसे इन्वेसिव स्पीसीज का इंपोर्ट हम क्या कर सकते हैं? बैन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ साइट्स। दैट्स व्हाट इंडिया डिड। तो what is this biodiversity hotspot?
सो द कंसेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, मैं एक क्विक रिवीजन दूंगा. द कंसेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय नॉर्मन मेयर्स इन 1988. लेकिन अभी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इस कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट कौन करता है? कंजर्वेशन इंटरनेशनल. सो ओरिजिनली बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कंसेप्ट वाज गिवन बाय नॉर्मन मायर्स इन 1988, बट आज हमारे पास पूरी दुनिया में जो 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है वो सारे के सारे डिक्लेयर किसने किए हैं? कंजर्वेशन इंटरनेशनल ने. और किसी भी एरिया को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट डिक्लेयर करने के लिए कंजर्वेशन इंटरनेशनल क्या क्राइटेरिया यूज करता है? तो नंबर 1, स्पीसीज रिचनेस, कि वहां पे कितनी एंडेमिक स्पीसीज है, ठीक है, या वहां पे कितने नंबर ऑफ स्पीसीज है. दूसरा, ये जो स्पीसीज है उस पर्टिकुलर रीजन की, वहां में से ऐसी कितनी स्पीसीज है जो एंडेमिक है, मतलब दैट बिलोंग्स टू दैट ज्योग्राफिकल एरिया ओनली एंड नो अदर पार्ट इन द वर्ल्ड. और ये जो एंडेमिक स्पीसीज रिचनेस है उसके लॉस होने की पॉसिबिलिटी कितनी है, जिसे हम कहते हैं थ्रेट परसेप्शन. So these are the three criterias used by Conservation International to declare a particular area as biodiversity hotspot. तो यहाँ आप देख सकते हो the number of endemic species and species richness, ये species richness है, and third, degree of threat. These are the three criteria used by Conservation International to declare biodiversity hotspot. By using these three criteria, Conservation International declared 36 global biodiversity hotspot. Out of them, 4 biodiversity hotspots are located in India. And what are those 4 biodiversity hotspot? So number 1, the first biodiversity hotspot in India is Himalaya. Number 2, Indo-Burma. Number 3, Western Ghat and Sri Lanka. एंड नंबर 4, सुंदालैंड. अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज याद रखो, ब्रह्मपुत्र रिवर फॉर्म्स द बाउंड्री बिटवीन हिमालयन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट. ओके, ब्रह्मपुत्र रिवर फॉर्म्स द बाउंड्री बिटवीन हिमालयन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट एंड इंडो बर्मा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट. इन दोनों के बीच में बाउंड्री कौन है? ब्रह्मपुत्र रिवर. तो अभी राइट नाउ आई एम इन गुवाहाटी, तो आई एम रिकॉर्डिंग दिस क्लास इन गुवाहाटी, साउथ गुवाहाटी से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ. तो आई एम सिटिंग इन इंडो बर्मा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट. और अगर आप नॉर्थ गुवाहाटी से ये क्लास देख रहे हो या अरुणाचल प्रदेश के इस पार्ट से देख रहे हो जो ब्रह्मपुत्र के ईस्ट में आता है, तो इट मीन्स यू आर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रॉम हिमालयन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट. उसी तरह आपका जो अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड है ना, अंडमान एंड निकोबार कहते हैं ना हम, उसमें से अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड आता है इंडो बर्मा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में, एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड आता है सुंदालैंड में. तो अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड में अंडमान इंडो बर्मा में जाता है और निकोबार सुंदालैंड में आता है. तो सुंदालैंड ये जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है ना, इस बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में सिर्फ और सिर्फ निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड आता है. ठीक है, चलो आगे. सो ये हो गया आपका बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के बारे में. इंडिया एट कॉप 18 जो 2019 में हुई थी, क्या क्या प्रपोज किया था? इंडिया प्रपोज टू बूस्ट द प्रोटेक्शन ऑफ स्मूथ कोटेड ओटर एंड स्मॉल क्लॉड ऑटर. तो 2019 की कॉप में इंडिया ने कहा कि हम किसे प्रोटेक्ट करेंगे, अभी दिखा देते हैं आपको. स्मूथ कोटेड ऑटर को प्रोटेक्ट करेंगे. दिस इज द स्मूथ कोटेड ऑटर, अ ब्यूटीफुल एनिमल. सी, वाओ, सो क्यूट. इंडिया ने कहा कि वी विल प्रोटेक्ट देम, इनका इंटरनेशनल ट्रेड अलाउड नहीं है. और क्यूटनेस ओवरलोडेड देखना है आपको, ये देखो, क्यूटनेस ओवरलोडेड, स्मूथ कोटेड ऑटर. सो इंडिया ने कहा कि वी विल प्रोटेक्ट देम. इतना ही नहीं, तो इंडिया ने ये भी कहा कि वी विल ऑल्सो प्रोटेक्ट small clawed otter. तो हम, इंडिया ने कहा कि हम इनको भी प्रोटेक्ट करेंगे. तो ये ऑटर की अलग अलग स्पीसीज है, इसे भी प्रोटेक्ट करेंगे, इसे भी प्रोटेक्ट करेंगे, इसे भी प्रोटेक्ट करेंगे. और क्या कहा इंडिया ने? इंडिया ने कहा कि वी विल प्रोटेक्ट इंडियन स्टार टॉर्टोइज. इंडियन स्टार टॉर्टोइज को भी हम प्रोटेक्ट करेंगे. लेटेस्ट है ये,
दिस इज इंडियन स्टार टॉर्टोइज। इंडिया सेड कि वी विल प्रोटेक्ट दिस टॉर्टोइज ऑल्सो। आपको पता होगा इस तरह के टॉर्टोइज लोग अपने घरों पे रखते हैं, विच इज नॉट अलाउड। इफ यू डू नॉट हैव एनी सर्टिफिकेट टू कीप दिस स्टार टॉर्टोइज एट योर होम, तो आपके अगेंस्ट डायरेक्ट एक्शन लिया जा सकता है, FIR हो सकता है। तो बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर हैविंग डिफरेंट एनिमल्स एट योर होम। ओके, और क्या कहा इंडिया ने? इंडिया ने कहा हम टोक्यो गेक्को को भी प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, करो भाई, किसे करेंगे? टोक्यो गेक्को को भी हम प्रोटेक्ट करेंगे। दिस इज टोक्यो गेट्टो। वाह, वैसे तो गेक्को को देखकर हमें ईक वाली फीलिंग आती है, लेकिन इसे देखकर वाव वाली फीलिंग आ रही है। इजंट इट ब्यूटीफुल? यस, शी इज ब्यूटीफुल, शी इज ब्यूटीफुल इंडीड। चलिए आगे चलते हैं। ये ऑनलाइन में ये मज़ा होता है कि आप बिंदास आराम से डिटेल में पढ़ा सकते हो। एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी में तो अलग ही मज़ा आता है मुझे पढ़ाने में। ऑफलाइन में थोड़ा लिमिटेशन होता है। ये है आपकी वेज फिश। वी आर ऑल्सो प्लानिंग टू प्रोटेक्ट द वेज फिश। इंडिया ने कहा है कि हम इस फिश को भी प्रोटेक्ट करेंगे। नाउ सी, प्रोटेक्ट का मतलब ये नहीं है कि यू विल स्टॉप यूजिंग दोज एनिमल्स, यू विल स्टॉप पोचिंग दोज एनिमल्स। वॉट यू विल डू, अगर आपको उनको यूज करना है, पोच करना है, तो यू विल गेट सर्टिफिकेट, you will get permission from the management committee established by Indian government, right? देन इंडियन रोजवुड नाम का प्लांट है, उसे भी कहा है हमने कि हम प्रोटेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे एक बात याद रखो, व्हेन वी से टू प्रोटेक्ट एनी प्लांट और एनिमल स्पीसीज अंडर साइट्स, इट मीन्स वी आर नॉट गोइंग टू बैन द ट्रेड, बट वी आर गोइंग टू रेगुलेट द ट्रेड, ताकि उस स्पीसीज, वो स्पीसीज एक्सटिंक्ट ना हो, एक्सटिंक्ट ना हो इसलिए। ओके, देखो यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं, बहुत केयरफुली सुनिएगा। India wants to relist two otter species, star tortoise in CITES Appendix 1 and Tokyo gecko and wedgefish in CITES Appendix 2। लेकिन इंडिया की ये रिक्वेस्ट कब पास होगी? अगर कॉप मतलब सारे मेंबर इसे एग्री करते हैं तो। लेकिन इनको इंडिया अपेंडिक्स 3 में अकेला भी डाल सकता है, राइट? यस, सो दीज आर द plants and animals: smooth coated otter, small clawed otter, star tortoise, Tokyo gecko, देन आपकी इंडियन, ये कौन सी फिश है? वेज फिश एंड इंडियन रोजवुड। इन सबको इंडिया कह रहा है कि भाई साहब किस में डालो, अपेंडिक्स 1 या अपेंडिक्स 2 में डालो। ठीक है, तो वो डिसीजन कॉप लेगा। ये 2018-19 के कॉप में इंडिया ने ये रिक्वेस्ट की थी। तो सी, एज साइट्स लीगली बाइंडिंग। अब बताओ आप लोग, एज साइट्स लीगली बाइंडिंग? यस, आंसर इज यस, साइट्स इज लीगली बाइंडिंग। देन मुझे बताइए, व्हाट इज अ साइट परमिट? साइट इज अ परमिट दैट अलाउज यू टू import or export plant or animal species internationally. That is the CITES permit. Then is India a member of CITES? Yes, India became member of CITES in 1976। और इतना ही नहीं, तो इंडिया ने CITES की COP3 भी इंडिया में कंडक्ट की है, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट द CITES गाइस। ओके, तो आज हम यही रुकते हैं। बिफोर यू लीव दिस क्लास, आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है, और वो इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है? सबसे पहले तो आपको, अगर ये जो अभी मैंने पढ़ाया इसकी PDF आपको चाहिए, तो दिस इज अवर टेलीग्राम चैनल ऑफ IQ Civil IAS Academy। तो ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल। देन we are starting new batches online as well as offline from 10th August, 16th August and 22nd August. So I request you to call on these numbers and register your name so that you will not lose any seat, because number of student हम हर बैच में लिमिटेड लेते हैं। तो अगर आपने लेट कर दिया तो आप ये बैचेस मिस कर जाओगे। तो इमीडिएटली नीचे दिए गए रजिस्ट्रेशन नंबर्स पे रजिस्ट्रेशन कर लो ऑनलाइन या ऑफलाइन बैच के लिए, और अपनी सीट इंश्योर कर लो एट IQ Civils IAS Academy। अ ग्रेट कोच ट्रांसफॉर्म्स लाइफ, वन ऑफ द मोस्ट quality oriented IAS academies in Guwahati and India. So that's it from my side, guys. Thank you very much. Bye bye, take care, sayonara, see you soon.